हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पलक फ्रॉम पलक शाह इंटीरियर। सो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग 2 BHK होम इंटीरियर टूर। सो दिस इज अ होम ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल मिलेनियल कपल who has such a high energy and beautiful welcoming vibes that we have tried to translate that energy in their personality in their home. So we have used all the vibrant and bright welcoming hues and colors in their entire home. So I can't wait to show you the house which we have just handed over in Pune. So let's get started. Hi, my name is Sudhir. Hi, my name is Vidya. We were actually looking for solutions for our whole house. This is a house we've been living in for the past couple of years, and we wanted to make sure that all the different rooms that we had their own essence, while the whole house had a singular aesthetic running through. And we tried searching for a lot of interior designers online. We had a lot of conversations with We people. stalked a lot of interiors. We went through each and everyone's profile, and then finally we decided to go with Palak because obviously the content was amazing, her work was amazing. We really liked it. So before we actually started the whole process, we asked Palak to come over. We had an extensive interview. We gave her a lot of inputs of all the items that we wanted, and also heard her ideas. And I think we were very comfortable in the communication that flew back and forth, and that's why we decided to go with Palak in the month of June. Yeah. So when we started the work, actually the initial phase was fantastic. We had so many ideas. She had so many ideas. She had alternate ideas which were more optimal based on the space of our house. She gave us the better alternatives to what we had in mind, the colors, the textures. She explained us everything, and basically she came up with alternatives and more. So when we told her that this is our budget, she gave us multiple options. So if, for example, there is something that we want behind the TV, she had a more budget-friendly option, and she had an expensive option. So yeah, that was a really good thing that we liked about her, that she had a lot of options, and the creativity as well. I mean, right from the workstation, how to optimize the space, if we can have a hidden drawer somewhere, all of those ideas really made us select her, and it was great. Also, I think we had a lot of space in our house, but we didn't really know what needs to be done with those areas. So her inputs are very helpful there, especially as we mentioned the secret drawer or the workstation, how to optimize the free space and the space that we have to live around in the houses. That was a very key ingredient that helped us make these decisions. As she said, there were alternates for all the ideas that we had. One which was budget friendly, one which was economical, one which was expensive. So we had the luxury of choosing amongst those, and that was a great Good option to alternative to have from our end as well, because we could pick and choose the sort of set pieces that we want, which areas of which rooms we wanted to focus upon, which rooms we could just keep minimal and as a hotel aesthetic as we were trying to go for, especially in the bedrooms for that matter. And that was a very good thing that we had with Palak. The end result is that we are very happy. All of us wanted set pieces in different rooms of the house, so that every single room had its own essence, and I think we managed to achieve that. Yeah. And the overall thing for the whole house, especially the lights, the way the lighting has been placed, the walls, for example, the accent walls that we have, they're all they have a language of their own, and hopefully it's a good thing that when the folks who do come and visit us, they'll feel that they're visiting our house for the first time, and also visiting a space that they are familiar with. At the same time, it has been transformed into something that they've not experienced before. So that's the idea. Yeah. So this is the entry of the house. तो यहाँ पे हमने एक सेफ्टी डोर डिज़ाइन किया है, और हमें ये चाहिए था कि जो भी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द हाउस हो बहुत ही ग्रैंड एंड वाइब्रेंट होना चाहिए. तो इसमें हमने कलरफुल ब्लू एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, विच हैज़ कम आउट वेरी नाइसली. यहाँ पे हमने पूरा डोर पीयू पेंट में किया है, और बीच में हमने कस्टमाइज एंटीक जाली सेफ्टी डोर्स लगाए हुए हैं. एंड ऑल्सो वी हैव कंटिन्यूड द वुडन ट्रिम डिजाइन इन द लिविंग एरिया ऑल्सो. सो नीचे हमने वुडन ट्रिम दिया हुआ है. यहाँ पे हम नो हैंडल डोर में गए हुए हैं, बिकॉज दिस ग्रिल्स आर इनफ फॉर ओपनिंग एंड शटिंग द डोर.
So this is the safety door of the house. So once you enter the house, this is the front foyer. तो यहाँ पे जो हमने console शूरेक लिया हुआ है, so we have gone for a very fresh color over here. यहाँ पे हमने drawers दिए हैं and नीचे हमने शूरेक दिया है. The entire console unit हमने PU फिनिश में लिया है. और जब भी हमारा फ्रंट वेस्टिबुल होता है, वी ऑल वांट अ की होल्डर जहाँ पे हम रेगुलर जो यूज़ करते हैं वो कीज़ हैंग कर पाए. तो कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज दिखता है अगर आप दीवार पे डायरेक्टली ओपन स्पेस में उसका की होल्डर वगैरह रख दो. सो यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ हिडन स्टोरेज फॉर द कीज. सो दिस इज अ पुश मैग्नेट स्टोरेज एंड इसके ऊपर हमने जो नॉर्मल वॉल का जो कलर है वही कर दिया है. सो व्हेन यू एंटर एक्चुअली अब वो हाईलाइट नहीं होता है एंड सारी चीज़ें अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रह जाती है. सेंटर में हमने एक सिटिंग दिया हुआ है और इसके नीचे देयर इज अ स्टोरेज अगेन. यहाँ पे अगेन देयर इज अ ड्रॉवर एंड द शू रैक. ये जो मिरर है उसके पीछे भी देयर इज वन पुश मैग्नेट स्टोरेज, पर उसमें काफ़ी रेयरली जो यूज़ होता है वो चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द हाउस. वी हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी फ्रेश एंड वाइब्रेंट. जो सीलिंग है उसमें हमने कंटेम्प्रेरी सीलिंग की है, बट अगेन वी हैव हाईलाइटेड द बॉर्डर विद द कॉर्निस एंड द ब्लैक कलर एंड देयर इज वन शैंडिलियर इन द सीलिंग. सो वंस यू एंटर द लिविंग एरिया, यहाँ पे पहले एक वॉल था जिसको हमने डिमोलिश किया है सो दैट ये पूरे लिविंग एरिया को एक बहुत ज़्यादा स्पेशियस लुक मिल जाए. एंड व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द सोफा यू कैन सी फ्रॉम द सेफ्टी डोर हु इज कमिंग इनसाइड. सो ये जो टीवी यूनिट है वो वॉल हमारे पास काफ़ी बड़ी वॉल थी, बट वी डिड नॉट वांटेड कि उसको पूरा भर दे, बट इट शुड लुक वेरी एलिगेंट. सो यहाँ पे हमने बहुत ही स्लिक बट लेंदी टीवी यूनिट ड्रॉवर दिया हुआ है इन द ब्लू शेड, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है पीछे के मार्बल फिनिश को जो कि हमने वॉल पे क्लैड किया है. और उसमें भी देयर आर हिंट्स ऑफ ब्लू इन द वॉल. और ऊपर हमने पूरा प्लस डिज़ाइन में हमने ओपन शेल्फ दिया हुआ है फॉर द आर्टिफैक्ट्स. यहाँ पे हमने हैंडल्स नहीं दिए हुए हैं, हमने लूवर्स वाली शीट है. एंड देन दिस इज अ ड्रॉवर विच इज ऑपरेटेबल फ्रॉम द बॉटम. यहाँ पे जो वॉल है उसको भी हमने हाईलाइट किया है विद द वुडन ट्रिम्स एंड उसके ऊपर हमने सेम ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है. एंड दिस देयर आर द हैंगिंग लाइट्स ऑन द डिफरेंट लेवल, सो इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू द एंटायर टीवी यूनिट. यहाँ पे हमने सेम ब्लू शेड वाले शेयर एंड सॉलिड कर्टन में गए हैं. अगेन दिस इज द फ्लोर टू सीलिंग टच कर्टेन्स. पीओपी में हमने कटआउट करके एलईडी लाइट रखी है टू गिव इट अ वेरी नाइस लुक. जो सीलिंग है लिविंग रूम का कंटेम्प्रेरी सीलिंग में गए हुए हैं, पर जो बॉर्डर है उसको सेम हमने कॉम्बिनेशन में लिया है जो कि हमारा एंट्रेंस का सीलिंग था विद द कॉर्निस on the edge and then we have painted it. So the wall between these two windows we have put this very nice and beautiful artifact which client had, and this has come out so nice because when you enter the house this is the thing which gets highlighted. दिस इज द डाइनिंग एंड क्रॉकरी एरिया. तो यहाँ पे देयर इज अ मार्बल टॉप डाइनिंग टेबल विद द फुल्ली अपहोल्स्ट्री चेयर. यहाँ पे हमने एंटीक फिनिश क्रॉकरी यूनिट लिया है. सो देयर इज अ 2 डोर ग्लास शटर एंड अंदर हमने ग्लास के शेल्व्स दिए हैं. व्हेनेवर यू गो फॉर समथिंग लाइक दिस जहाँ पे ऊपर लाइट हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे ग्लास शेल्फ के लिए जाए सो दैट द लाइट ट्रांसमिट टू द बॉटम टिल द बॉटम. सो यहाँ पे हमने कॉर्नर क्रॉकरी यूनिट लिया है सो दैट देयर इज अ इनफ सर्कुलेशन स्पेस टू गो एंड सिट ऑन द डाइनिंग एरिया. ये जो हमारी वॉल है उसको हमें एक एंटीक टच भी देना था विद द कलरफुलनेस ऑल्सो. तो यहाँ पे हमने एक टाइल का क्लैडिंग किया है विच इज एंटीक टाइल एंड इट ऑल्सो हैज सम शिमर इन इट. सो द एंटायर वॉल वी हैव डन द टाइलिंग and it has come out really nice and complementing the other colors also which we have used for the living area. So यहाँ पे there is a marble finished dining table and the fully upholstered chair to complement the brighter shade of the dining area and the living area.
सो इन द किचन मेजर जो एक एस्पेक्ट है जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, दैट इज दिस रोलिंग शटर। सो ये रोलिंग शटर जो है वो आप अपने किचन में कहीं पे भी ऐड कर सकते हो एंड इट इज फंक्शनली वेरी वेरी यूजफुल। जनरली क्या होता है कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, टोस्टर है, एयर फ्रायर है, तो वो सारे काउंटर्स पे या नीचे स्पेस आपकी कंज्यूम कर लेते हैं एंड थोड़ा ऑर्गेनाइज भी नहीं दिखता है। सो इफ यू गो फॉर समथिंग लाइक दिस इन अ रोलिंग शटर डिजाइन, तो एक आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन बन जाता है एंड दिस इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली एंड उसमें सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फिट हो जाते हैं। यू कैन कस्टमाइज द डिजाइन एज पर द पर्टिकुलर नीड ऑफ योर हाउस एंड लाइफस्टाइल। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक ओवन रखा हुआ है, यहाँ पे एक है, तो हमने क्या किया है कि इसके पीछे ही हमने एक प्लग पॉइंट दे दिया है सो दैट प्लग इन ऑलवेज रहता है एंड देन देयर इज अ स्विच बोर्ड आउटसाइड। यहाँ से स्विच ऑन करके यू कैन यूज दिस डायरेक्टली ओवर हियर। जब आपका काम हो जाता है यू कैन जस्ट कवर दिस इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन और आपका किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। सो दिस इज द रोलिंग शटर। डेफिनेटली इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है बट फॉर द फंक्शनैलिटी इट इज़ टोटली वर्थ इट। सो फॉर द स्पेस, जो आपका हॉब है और चिमनी है उसकी इमीडिएट जो स्पेस होती है उसमें जनरली ओवरहेड लोग कम प्रीफर करते हैं एंड वी डोंट ऑल्सो सजेस्ट दैट मच बिकॉज वो जब आप वर्क करते हो यहाँ पे तो आपके सर पे आता है। तो दिस काइंड ऑफ ओपन शेल्फ फॉर द स्पाइसेस इज अ बेस्ट थिंग यू कैन डू व्हेन यू हैव अ हॉब एंड इमीडिएटली देन यू वांट अ स्टोरेज ओवर देयर। तो वो बहुत ईजी भी रहता है एंड कन्वीनियंट भी रहता है। इट इज़ वेरी ईजी टू क्लीन, ऑल्दो यहाँ पे चिमनी होती है और सब होता है पर फिर भी ऑयल फ्यूम्स एंड वो सब नीचे स्टिकीनेस आ ही जाती है। सो इट इज़ वेरी ईजी टू क्लीन। सो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ ओपन स्पाइस रैक जस्ट बिसाइड योर हॉब एंड चिमनी। तो ये जो पैसेज है ये लिविंग रूम से बेडरूम की तरफ जाने का पैसेज है। तो यहाँ पे हमने एक कॉमन वॉश एरिया कम यूटिलिटी एरिया डिजाइन किया है। फॉर दैट हमने यहाँ पे काफी लंबा एक क्वार्ट्ज का काउंटर टॉप लिया है एंड उसके ऊपर वी हैव गॉन फॉर दिस मार्बल फिनिश वॉश बेसिन एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एंड हाईलाइट करने के लिए वी हैव गॉन फॉर दिस क्रोम फिनिश टैप ओवर हियर। And then we have put a very big mirror with the same finish border to highlight it with the backlit over here. नीचे हमने पूरा स्टोरेज दिया हुआ है फॉर द यूटिलिटी। ये हमेशा हम हमारे वीडियोस में भी शेयर करते हैं एंड व्हेनेवर वी डिजाइन एनी हाउस वी टेल आवर क्लाइंट कि आप जो भी स्टोरेज है वो स्पेसिफिक आपके लाइफस्टाइल और नीड्स के हिसाब से डिजाइन कीजिए तो आपको हर एक चीज प्रॉपर्ली फिट इन हो जाएगा। सो पर्टिकुलरली फॉर दिस हमने यहाँ पे एक लॉन्ड्री बास्केट का इनबिल्ट स्पेस दिया हुआ है। सो दिस इज द डमी शटर्स, क्योंकि उसको हमें मैच करना था विद आवर अदर शटर्स थिकनेस। तो ये एक ही शटर है और उसके ऊपर हमने सेम डिजाइन कंटिन्यू किया हुआ है। सो व्हेन यू ओपन दिस वी हैव कस्टमाइज दिस लॉन्ड्री बास्केट। एक्चुअली क्लाइंट के पास ऑलरेडी एक लॉन्ड्री बास्केट था तो हमने उसको कस्टमाइज किया है एंड देन वी हैव अटैच दिस विद द वेलक्रो। तो जब उनको पूरा निकाल के वॉश करना है या क्लीन करना है तो वो चीज़ भी हो सकती है एंड इट इज हिडन ऑलवेज। एंड देन देयर इज अनदर स्टोरेज ओवर हियर फॉर द यूटिलिटी। अगेन यहाँ पे हमने कोई हैंडल नहीं दिया है। सो जब भी ऐसी डिजाइन और डिटेल होती है तो जो शटर है उसको हम थोड़ा सा बाहर रखते हैं फ्रॉम दिस सरफेस so you can easily open and shut it. This is the open shelf and this is a very long passage। तो उसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया है एक हैंगिंग वर्टिकल लाइट के साथ। So this entire area gets enhanced nicely. सो दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। ये मास्टर बेडरूम का जो थीम है वो हमने एकदम लग्जूरियस क्लासिक बट एंटिक थीम में लिया हुआ है, दैट इज ग्रीन एंड गोल्डन फिनिश। द मेन पार्ट ऑफ दिस बेडरूम इज दिस एक्सेंट वॉल। उसमें हमने गोल्डन टच का डिजाइन किया हुआ है एंड दिस इज द कस्टमाइज्ड डिजाइन। इसमें हमने एक्रेलिक शीट में कट आउट किया हुआ है एंड देन वी हैव अप्लाइड दिस ऑन द वॉल। सेंटर में फॉर द हाइलाइटर हमने हनीकॉम्ब शेल्फ बनाया है जिसमें क्लाइंट कैन पुट द आर्टिफैक्ट्स एंड बुक्स एवरीथिंग एंड वी हैव गिवन अ स्पॉटलाइट।
Then we have given 2 hanging lights on the side tables and bed side. तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप ये नाइट लैम्प की तरीके यूज करते हो तो ये जो एक्रिलिक का डिजाइन जो है वो सीलिंग में और वॉल में पूरा कॉर्नर शेडो क्रिएट करता है. इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड एलिगेंट लुक एंड दिस कैन ऑल्सो यूज एज अ नाइट लैम्प. दिस स्पॉट लाइट्स जो बेड के दोनों तरफ साइड टेबल्स हैं वो हमने कस्टमाइज किए हैं साइड पे. जैसे पूरे घर का पूरे रूम का जो थीम है गोल्डन एंड ग्रीन, हमने यहाँ पे भी वही कैरी फॉरवर्ड किया है. जो 2 ड्रॉवर है उसका जो फ्रंट है वो हमने फ्लूटेड शीट में लिया है और जो टॉप है उसको गोल्डन फिनिश किया है. जो पूरा टेबल जो है उसको हमने पीओ फिनिश किया है. देन वी हैव पुट अ गोल्डन एंटीक हैंडल ऑन द ड्रॉवर्स. ये जो कॉर्नर है उसको हमने एज अ ऑफिस स्पेस यूज किया हुआ है. तो हमने यहाँ पे एक स्टडी टेबल कम वर्किंग डेस्क बनाया है एंड यहाँ पे हमने फ्लूटेड शीट का शटर बनाया हुआ है जहाँ पे हमने हैंडल्स नहीं लिए हैं. सो नीचे ग्रूव है, सो यू कैन इजीली ओपन इट एंड ये पूरा फ्लश हो जाता है विद द ओवरहेड शेल्फ. ऊपर हमने अपलिफ्टेड शेल्फ बना दिया है. तो यहाँ पे हमने जो भी ये रूम में फर्नीचर किया है तो उससे जो यूनिट है वो एक पूरी थीम में भी जाता है एंड द स्पेस ऑल्सो लुक्स बिगर. यहाँ पे हमने फॉर द आर्टिफैक्ट्स एंड बुक्स ओपन शेल्फ दे दिया है एंड देन देयर इज अ ओवरहेड. यहाँ का जो मास्टर बेडरूम का वार्डरोब है उसको हमने फ्लोर टू सीलिंग टच वार्डरोब दिया है जिसमें 2 डोर्स है, स्लाइडर डोर्स. तो जो पहला डोर है उसको हमने पूरा मिरर दिया हुआ है एंड ये डोर जो है वो एग्जैक्टली एंट्रेंस डोर के एग्जैक्ट सामने आ रहा है. तो ये रूम काफी एंटर होते ही काफी बड़ा दिखता है इसकी वजह से. एंड सेकेंडली यहाँ पे हमने कोई सेपरेट ड्रेसिंग एरिया नहीं दिया है तो दिस वर्क्स बेस्ट एज अ ड्रेसर मिरर ऑल्सो. और जो दूसरा शटर है उसको हमने पीओ फिनिश किया है. पूरे रूम की जो थीम है लूवर्स वाली थीम उसको कंटिन्यू करने के लिए हमने नीचे लूवर्स का डिजाइन दिया हुआ है और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक गोल्डन हैंडल दिया हुआ है. सो ये सॉफ्ट क्लोज डोर्स है. सेकेंडली जब भी आप फ्लोर टू सीलिंग टच वार्डरोब में जाते हो तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो ऊपर का पोर्शन है वो बहुत रेयरली यूज में आने वाला है. रूटीन में यू कांट यूज दैट. तो वहां पे आप एक शेल्फ दे सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा बैग्स और क्लोथ्स. और नीचे वाला जो है वहाँ पे आप हैंगर्स एंड नॉर्मल जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यू कैन डिवाइड एंड डिजाइन. यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उनको ब्लेजर वगैरह हैंग करने के लिए एक लंबा हैंगिंग स्पेस चाहिए था एंड देन नीचे नॉर्मल शेल्फ दिए हुए हैं. और हमने अंदर का इंटरनल फिनिश जो है वो फैब्रिक लेमिनेट का लिया है यहाँ पे. सो दिस इज द सॉफ्ट क्लोज डोर्स. ये दूसरी तरफ का डोर है. इसमें हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कंपार्टमेंट चाहिए थे वो किए. बट द मेन थिंग इज कि इसमें व्हेन यू वांट अ स्टोरेज बट वो आपको लॉकर नहीं रखना है एंड यू वांट टू पुट योर वैल्यूएबल्स इनसाइड द वार्डरोब सो यू कैन ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ हिडन स्टोरेज. तो ये बाहर से ये दोनों ड्रॉवर आपको सेम दिख रहे हैं बट पूरे दोनों ड्रॉवर की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत अलग है. दिस इज द नॉर्मल ड्रॉवर एंड ये ड्रॉवर में हमने एक हिडन ड्रॉवर दिया हुआ है. सो वंस यू ओपन दिस ड्रॉवर यहाँ से साइड में से ये एक ट्रे ओपन होती है एंड देयर इज अ लॉक ऑल्सो सो यू कैन डबल लॉक इट फॉर द सेफ्टी एंड यू कैन कीप योर वैल्यूएबल इनसाइड. एंड बाहर से द ड्रॉवर बोथ द ड्रॉवर्स लुक्स द सेम. सो दिस इज द थिंग यू कैन यूज इन योर होम इफ यू वांट अ हिडन स्टोरेज. मास्टर बेडरूम का जो सीलिंग डिजाइन है वो हमने बहुत कंटेम्प्रेरी स्टाइल में गए हैं बट उसको हमें शार्प एजेस नहीं देने थे. सो फॉर दैट वी हैव गिवन अ कर्व ऑन द एजेस और उसकी जो बॉर्डर है उसको हमने सेम ग्रीन कलर जो हमने वॉल और वार्डरोब्स एंड फर्नीचर में लिया है उससे हमने हाईलाइट किया है बट इट गिव्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल लुक ऑफ द रूम. सेकेंडली ये जो कर्टेन है वहाँ पे हमने पीओपी में कटआउट किया है और फ्लोर टू सीलिंग टच कर्टेन दिया है एंड इट हैज अ इनडायरेक्ट लाइट इनसाइड. तो ये जब लाइट कर्टेन पे फॉल होती है तो उसकी वजह से इट गिव्स अ वेरी नाइस रेडिएंट टेक्सचर टू द कर्टेन और रूम भी काफी स्पेशियस दिखता है बिकॉज ऑफ द फ्लोर टू सीलिंग टच कर्टेन्स. सो यहाँ पे पूरे घर में विट्रीफाइड फ्लोरिंग दिया हुआ है बट हमने जो ये थीम लिया था मास्टर बेडरूम का उसको मैच करने के लिए हमने यहाँ का फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग में गए हैं बिकॉज फ्लोरिंग एक्चुअली प्लेज अ वेरी मेजर रोल. जब आपकी पूरी थीम ओवरऑल एक साथ कंबाइन होती है तो ये हमने फिर वुडन फ्लोरिंग में गए हैं एंड एक्चुअली इट इज गोइंग रियली वेल विद द एंटायर थीम ऑफ द रूम.
पेरेंट्स बेडरूम ऑफ द हाउस। यहाँ पे हमने बहुत ही कंटेम्प्ररी एंड मिनिमलिस्टिक थीम में गए हैं। तो यहाँ का पर जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें हमने थोड़ा सा प्ले किया है, दैट इज दिस पीच वेरी फ्रेश कलर। तो पूरी वॉल पे हमने पीच कलर लिया है एंड द हाईलाइटर ऑफ दिस बेड बैक वॉल इज दिस आर्टिफैक्ट, जिसमें हमने वही पीच एंड ग्रीन कलर हाईलाइट हो वैसे सिलेक्ट किया है। एंड जो कर्टेन है उसमें हमने फुल हाइटेड कर्टेन लिए हैं विद द डार्कर टोन ऑफ द वॉल कलर। सो दिस इज वेरी मिनिमलिस्टिक बेडरूम विद द बेड एंड वार्डरोब। यहाँ की जो सीलिंग है वो हमने बहुत ही सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक किया है। तो जो हमारा बेड का फ्लोर एरिया है उसको ही हमने सीलिंग में उतना डाउन किया है फॉर द लाइट फिक्सचर। एंड पूरे घर में हमने 3-in-1 लाइट्स दी है। सो फ्रॉम द वन switch only you can operate the light and set the mood of white, warm white and yellow as per the mood you have. If you are reading you can go for a white light, if you are watching TV you can go for a warm white light. So that is the best in one fixture you can get in the light fixture. So for the curtain in the parents bedroom हमने थोड़ा सा brighter tone लिया है than the wall and we have also tried to match it with the wardrobe, existing wardrobe जो भी है उसके साथ. So whenever you are selecting the curtain आप sheer और solid का mixture दे सकते हो, because जो sheer curtain है अगर आपको थोड़ी सी धूप चाहिए रूम में तो if you just open the sheer curtain तो हल्का सा धूप आ सकता है रूम में, और जब आपको पूरा ब्लैकआउट चाहिए आप सॉलिड कर्टेन ओपन कर सकते हो. सो दिस वर्क्स बेस्ट. यहाँ पे भी हमने फुल हाइट कर्टेन लिया हुआ है. So this is it guys. This was the home tour of this beautiful 2 BHK home in Pune Wakad. So if you like our work, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, please support us and like, share and subscribe this video. You can also follow us on our Instagram handle, that is Palaksha Interiors. Stay happy, stay blessed. Bye.